Good morning, students. In the last video of class 12 business studies, we discussed the fourth elements of directing, that is communication. Communication is a process of exchange of ideas, facts, feeling, views between two or more people to create common understanding. In this topic, we discuss the whole communication process, which starts from the sender and ends with the feedback. In the whole communication process, we study the few elements related to the communication process, that is sender, message, encoding, channel, decoding, receiver, feedback and noise. And thereafter, in the last video, we discussed the different types of communication, that is formal communication and informal communication. Formal communication refers to the communication taking place through the official channels in an organization, and whereas informal communication take place in an organization without following the formal lines of communication, and such kind of communication is also known as grapevine. As well as we discuss the networks of formal communication and as well as the informal communication. The networks of the formal communication are single chain, wheel network, circular network, free flow and inverted V. And in the informal communication, we discuss the few network of informal communication, that is single strand network, gossip network, probability network and cluster network. Apart from this, we discussed in the last video the types of formal communication, which are vertical and horizontal. Vertical communication are those communication in which we communicate the information between two levels in the organization. It may be in the upward or it may be a downward. And the horizontal communication takes place between individual working at the same level. For example, production manager communicates with the marketing manager. In today's videos we discuss the difference between formal and informal communication, बिकॉज कम्युनिकेशन के दोनों पार्ट को सेपरेटली स्टडी करने के बाद इन दोनों के बीच में कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है, जो आपको हेल्प करेगा कि हम कैसे इन दोनों टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को ईजिली समझ सकें. So the difference between formal and informal communication on the basis of mutual relationship between among members. Formal communication based on the formal superior and subordinate relationship, whereas a informal communication based on the interpersonal contacts. कि ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके के होते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. तो मैंने आपको ईजिली हिंट भी दिया है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक लाइन होती है, एक सिस्टम होते हैं जिससे हम अपने सुपीरियर या सबऑर्डिनेट्स को इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं. तो फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है जनरली वो सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के फॉर्मल रिलेशनशिप में इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट होती है. एंड वेयर इज़ अ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, हम जब भी इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करते हैं तो वो हम इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट्स के बेसिस पे करते हैं, एंड दे जनरली ऑकर्स इन द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, फॉर्मल कम्युनिकेशन आर द सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली, एंड इन वेयर इज़ अ informal communication, the whole communication process are unsystematic and irregular. On the basis of speed of communication की बात करें तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन होता है कि इन्फॉर्मेशन का जो एक्सचेंज होता है वो स्लो होता है एंड टाइम कंज्यूमिंग भी होता है. इसमें टाइम भी लगता है, और जैसे हम अपने सुपीरियर को कोई भी इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करनी है तो एक प्रॉपर चैनल से हम इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट कर सकते हैं. बट इन द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो इन्फॉर्मेशन का जो स्पीड होती है, कम्युनिकेशन की जो स्पीड होती है वो फास्ट होती है और इसमें टाइम भी बचता है. ऑथेंटिसिटीज़ के बेसिस पे कहें तो फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वो ऑफिशियली होता है एंड वेल प्लान मैसेज होता है, यानी कि इसमें इसकी रिलायबिलिटी होती है. ये मैसेज कहाँ से आ रहा है इसकी भी सोर्सेज एकदम क्लियर होते हैं ऑफिशियल लेटर्स में. बट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये है कि इसमें रिलायबिलिटी काफ़ी कम होती है. लोग जल्दी इस तरह के न्यूज़ पे इस तरह की इन्फॉर्मेशन जल्दी बिलीव नहीं करते क्योंकि ये अथेंटिक नहीं होता. ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर, जनरली अगर हम बात करें तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं विच आर बेसिकली रिलेटेड टू द वर्क, डेट इज़ ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन आर कम्युनिकेटेड, वेयर एज इन द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पर्सनल मैटर आर डिस्कस्ड. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू पे हम जनरली अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स एंड पर्सनल मैटर्स पे डिस्कशन करते हैं. ऑन द बेस ऑफ ऑब्जेक्टिव, देखिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अचीव अ
ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अचीव अ पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो जनरली अगर हम बात करें तो फॉर्मल कम्युनिकेशन इसलिए किया जाता है ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सकें, वेयर इज़ अ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इसलिए किया जाता है ताकि हम अपने सोशल नीड्स को, इमोशनल्स को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें, यानी हम अपनी पर्सनल नीड्स को और इंटरेस्ट को फुलफ़िल कर सकें। सो दे आर बेसिकली 6 differences between formal and informal communication. Now we will move to the important part of communication. You know very well the 8th element of communication process, that is noise. जब भी हम कोई भी communication process start करते हैं तो which are started from the sender to the receiver, and the communication process is not completed until the feedback received from the रिसीवर, यानी जब तक रिसीवर से हमें फीडबैक नहीं मिल जाता तब तक हम कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट नहीं मानते हैं। तो जब भी कोई सेंडर किसी मैसेज को डिज़ाइन करता है, इनकोड करता है और एक प्रॉपर मीडिया के साथ, मीडियम के तरह की हेल्प से वो रिसीवर तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचाता है, रिसीवर उसको डिकोड करता है और फिर उस पर अपनी फीडबैक सेंडर को भेजता है। ये पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस मैंने आपको बताया। तो इस पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस में हमें कई तरह की प्रॉब्लम्स, कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसे हम लोग नॉइस कहते हैं, यानी डिस्टर्बेंस ऑकर्स इन द होल कम्युनिकेशन प्रोसेस। यानी जब भी हम कोई कम्युनिकेशन प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं या किसी भी इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ या फैक्ट्स को इंटरचेंज करते हैं, इंटर एक्सचेंज करते हैं, तो सिचुएशन में कई तरह की प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं और इसको हम लोग बोलते हैं बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन से हमारे लिए बैरियर्स होते हैं। बैरियर्स मीन्स प्रॉब्लम्स। ओके, तो अगर हमें एक कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना है, यानी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए कई चीज़ें हैं, जैसे कि हम सीक्रेसी के साथ कोई इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं लेकिन वो सीक्रेसी मेंटेन ना हो पाए, वो इन्फॉर्मेशन हम पर्टिकुलर बी के लिए बता रहे हैं लेकिन वो इन्फॉर्मेशन सी, डी, ई, एफ, जी, एच सबको सर्कुलेट हो जाए, या फिर वो इन्फॉर्मेशन को हम किसी प्रॉपर मीनिंग के साथ लोगों को तो भेज रहे हैं लेकिन वो उस फीलिंग के साथ, उस मीनिंग के साथ लोगों तक कन्वे नहीं हो रही है, तो वहाँ पे वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं रह जाता। कम्युनिकेशन इफेक्टिव तभी होता है जब वो कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे और जिस एम के लिए वो जो आइडियाज़ और फैक्ट्स को हमने कम्युनिकेट किया वो एम पूरा हो। तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कई सारी प्रॉब्लम्स एंड कई सारे बैरियर्स हम देखते हैं। तो मैनेजर्स यूजली फेस सेवरल प्रॉब्लम ड्यू टू द सर्टेन बैरियर्स कॉजिंग फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन और मिस कम्युनिकेशन, जिसे हम बोलते हैं ना मिस कम्युनिकेशन हो गया है, उसने मुझे गलत समझ लिया या मैंने इन्फॉर्मेशन किसी अलग वे में सर्कुलेट की थी लेकिन उसने किसी गलत वे में उसको इंटरप्रेट कर लिया। सो सच काइंड ऑफ बैरियर्स, सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स कैटेगराइज अंडर द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो हम लाइन वाइज लाइन सारे बैरियर्स को हम लोग स्टडी करेंगे और इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक and it is a very practical problem for us. So first barrier are semantic barriers. Semantic barriers, they are concerned with the meaning of words and symbol. Semantic barriers कौन से barrier होते हैं? जो कि किसी भी मीनिंग के, मैसेज के मीनिंग ऑफ वर्ड्स और सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। यानी semantic barriers are those barriers which are concerned with the meaning of words and symbols. Semantic barriers arise in the process of encoding and decoding. यानी जब सेंडर अपने मैसेज को इनकोड करता है, इनकोड करना मतलब प्रॉपर गेस्चर, पोस्चर के थ्रू, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, फ्रेजेस के थ्रू किसी मैसेज को कन्वे करने की कोशिश करता है, और जब रिसीवर उसी इनकोडिंग को अपने इंफॉर्मेशन के हिसाब से, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के अकॉर्डिंग उसको डिकोड करता है, तो ये जनरली प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि हमने भेजा किसी अलग वे में, अलग तरीके से हमने उसको मैसेज करने की कोशिश की लेकिन उसने उसको गलत वे में ट्रांसलेट कर लिया। इसके एग्जांपल क्या क्या हैं? दीज बैरियर आर एज फॉलोज। द फर्स्ट इज बैडली एक्सप्रेस मैसेज, यूज ऑफ रॉन्ग वर्ड्स, ओमिशन ऑफ नेसेसरी वर्ड्स एंड इनएडुकेट वोकेबुलरी रिजल्ट इन बैडली एक्सप्रेस मैसेज। यानी मैसेज जो है वो बैडली एक्सप्रेस्ड है, यानी उसमें सही ढंग से हमने वर्ड्स को यूज़ नहीं किया, जो नेसेसरी वर्ड्स हैं उनको हमने भूल गए उनको यूज़ करना, और वोकेबुलरी का प्रॉपर यूज़ नहीं किया। सो वो मैसेज क्या हो जाता है? सिमेंटिक बैरियर का शिकार हो जाता है। यानी वो कम्युनिकेशन इसलिए मिस कम्युनिकेशन हो जाता है क्योंकि वो मैसेज जो होता है वो बैडली एक्सप्रेस्ड होता है। द सेकंड इज सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। The same word or symbol may carry different meaning to the different people. The wrong meaning perceived by the receiver lead to communication process.
जैसे हमने कहते हैं ना किसी एक वर्ड के कई मतलब होते हैं। अच्छा, तो इसमें जो मैंने पहली बार अच्छा बोला, एक तरह से उसमें कहीं ना कहीं रिलायबिलिटी में कमी दिख रही। आपने कोई इन्फॉर्मेशन हमको सर्कुलेट किया, मैंने कहा अच्छा, तो मेरा ये मानना है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट की उसमें रिलायबिलिटी में कुछ कमी है। भाई मैं प्रॉपरली अगर उसको दूसरे सेगमेंट में आपको फीडबैक दूँ, अच्छा, तो यहाँ पर देखिए एक वर्ड, दोनों वर्ड सेम है बट उसका बोलने के तरीके से क्या हो रहा है, उसका जो रिलायबिलिटी है वो चेंज हो जा रहा है, यानी उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जा रहा है, उसका मीनिंग चेंज हो जा रहा है। सो कभी कभी हम कुछ सैम्बल्स को यूज़ करते हैं, उस सैम्बल्स का लोग गलत मीनिंग निकाल लेते हैं और उस मीनिंग के थ्रू, उस सैम्बल्स के थ्रू मैसेज क्या हो जाता है, इनकोडिंग और डिकोडिंग के प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाता है, यानी वो मैसेज उस वे में कम्युनिकेट नहीं हो पाता जिस वे में हम चाहते हैं। द थर्ड वन इज़ फॉल्टी ट्रांसलेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि when the translator is not proficient in both the language involved in the translation, the meaning of the message may get distorted. ये प्रॉब्लम आप बेसिकली फॉलो करते होंगे। जैसे आपको किसी भी प्रॉपर लैंग्वेज की प्रॉपर जानकारी नहीं होती तो आप उस मैसेज को गलत वे में ट्रांसलेट कर लेते हो, या फिर ट्रांसलेट तो करते हो लेकिन 100% वो ट्रांसलेशन एक्यूरेट नहीं होता है। सो इस केसेस में भी, यानी सेंडर ने जो मैसेज भेजा तो इनकोडिंग प्रॉपर वे में किया है, उसको शब्दों में अच्छे से बांधा है, अच्छे से उसने अपनी वोकेबुलरी का यूज़ किया है, सैम्बल्स का यूज़ किया है, बट ड्यू टू द फॉल्टी ट्रांसलेशन, यानी आपको उसका ट्रांसलेशन करने आ नहीं रहा है, आपके पास उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो आप उसका गलत मीनिंग निकाल ले रहे हो। द फोर्थ वन इज़ अनक्लैरिफाइड एजम्पशन। अ मैसेज में बी मिसअंडरस्टूड व्हेन द सेंडर डज नॉट क्लैरिफाई द एजम्पशन बिहाइंड इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे मैस्लो ने नीड हायरार्की थ्योरी आपको दी, उसके साथ कुछ एजम्पशन दी, अगर उसने सिर्फ नीड हायरार्की थ्योरी दी होती तो आप उसके कई एक्सेप्शन लगा देते कि यार ये थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है, ये थ्योरी सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि उसमें आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एजम्पशन जोड़ लेते कि अरे ऐसा होता है तो थोड़ी ना होता है, ऐसा होता है तो थोड़ी नहीं होता है, यानी मैस्लो थ्योरी गलत है। लेकिन वो थ्योरी गलत नहीं है, क्यों? क्योंकि उसने उसके साथ अपनी एजम्पशन भी दे दी है। यानी जब सेंडर कोई भी मैसेज रिसीवर को भेजता है तो इनकोडिंग करने से पहले उस मैसेज से रिलेटेड जो भी बेसिक एजम्पशन है उसको भेज लेना। एजम्पशन का मतलब है कौन कौन से सिचुएशन है जहां वो रूल एप्लीकेबल होगा, और एक्सेप्शन का मतलब होता है कौन कौन से सिचुएशन जहां वो रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी ये चीज़ें क्लियरली एक्सप्रेस्ड कर देनी चाहिए बाय द सेंडर टू द रिसीवर, क्योंकि वो मैसेज जब रिसीवर के पास पहुंचेगा तो रिसीवर उसका दोनों तरह से एनालिसिस करेगा, पॉजिटिव एनालिसिस और नेगेटिव एनालिसिस। सो जब भी हम किसी मैसेज को सर्कुलेट करें तो उसके एजम्पशन को भी प्रॉपरली क्लियर कर देना चाहिए रिसीवर के पास। द फिफ्थ वन इज़ टेक्निकल जॉर्गन। ये बहुत बेसिकली प्रॉब्लम है। अगर हम कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो हम कॉमर्स के जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं उसको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। मेडिकल लाइन की अगर हम बात करें तो उनके जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं वो मेडिकल स्टूडेंट जो हैं वो ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो स्पेशलिस्ट ऑफन यूज टेक्निकल लैंग्वेज विच कॉमन मैन डज नॉट अंडरस्टैंड हु आर नॉट स्पेशलिस्ट इन द कॉमन फील्ड। जैसे हम एक शॉर्ट फॉर्म में आपको यूज़ कराते हैं, हम अभी आप पढ़ोगे EBIT, तो मैंने EBIT बोला एज अ कॉमर्स स्टूडेंट। EBIT का मतलब मुझे पता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। लेकिन यही EBIT को मैं जब प्रॉपर पब्लिक के सामने प्रेजेंट करूँगा कि हमारी EBIT ये हो गई वो हो गई, तो इन्फॉर्मेशन प्योरली सर्कुलेट नहीं हो पाएगी। क्यों सर नहीं हो पाएगी? क्योंकि उनको EBIT का प्रॉपर मतलब नहीं पता। ओके, तो कुछ टर्म ऐसे होते हैं, जैसे हम GDP बोलें तो यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बट कॉमन पीपल जो कि जिनको इकोनॉमिक्स के बारे में नॉलेज नहीं है वो GDP को कहेंगे अरे कुछ होता होगा। यानी कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, टेक्निकल शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं जो पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट ही उसके बारे में नॉलेज रखते हैं। सो जनरली पब्लिक के बारे में उस वर्ड्स के बारे में, उस टेक्निकल वर्ड्स के बारे में नॉलेज नहीं होती, क्योंकि वो उस सब्जेक्ट में प्रॉपर स्पेशलिस्ट नहीं होते। सो इट इज़ अ बेसिक एग्जाम्पल ऑफ टेक्निकल जॉर्गन। द सिक्स वन इज़ अ बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर डिकोडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स द बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर ऑफ द इंडिविजुअल डज नॉट मैच विथ हिज कम्युनिकेशन, दस इट लीड्स टू द मिसकम्युनिकेशन। मिसकम्युनिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि हम जब भी अपनी इन्फॉर्मेशन को सर्कुलेट करते हैं, स्पेशली इन द ओरल, जब भी हम ओरल कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ओरल एज वेल एज एक्टिंग के थ्रू। यू नो वेरी वेल हम अपने मैसेज को बेसिकली 3 तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओरल फॉर्म में कम्युनिकेट कर सकते हैं, रिटेन फॉर्म में कम्युनिकेट कर सकते हैं, और एक्टिंग के फॉर्म में। तो एक्टिंग है और ओरल है, इन दोनों में मैसेज जो कम्युनिकेट किया था उसमें बहुत डीप में
बॉडी लैंग्वेज और गेस्चर का यूज़ किया जाता है। बॉडी लैंग्वेज का मतलब होता है, यू नो वेरी वेल, आप उस मैसेज को प्रेजेंट करते समय कैसे अपने हाथ पैर का यूज़ कर रहे हैं, अपने बॉडी का कैसे यूज़ कर रहे हैं, एज वेल एज गेस्चर यानी फेशियल एक्सप्रेशन, बोलने का तरीका, स्पीड ऑफ द मैसेज, कहाँ रुक रहे हैं, कहाँ अपनी स्पीड, अपने वर्ड्स अपने सेंटेंस की स्पीड बढ़ा दे रहे हैं, कहाँ स्लो हो जा रहे हैं, कहाँ तेज़ से बोल रहे हैं, कहाँ आप धीरे से बोल रहे हैं, ये होता है गेस्चर। गेस्चर इज़ अ वेरी डीप कॉन्सेप्ट। जब आप डिटेल में पढ़ेंगे कम्युनिकेशन आने वाली क्लासेस में, तो आप गेस्चर, पोस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज को अच्छे से समझ पाएंगे। यानी विच वी आर काइंडिंग अबाउट दी गेस्चर, पोस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज विच इंक्लूड द ऑल द एस्पेक्ट विच आर इंक्लूडेड इन द ओरल कम्युनिकेशन एंड द कम्युनिकेशन थ्रू द एक्टिंग। सो वहाँ पे आप फेशियल एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं, अपने बॉडी एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं, अपने हाथ का यूज़ करते हैं, अपने पैरों का यूज़ कर सकते हैं, चलने का यूज़ करते हैं, बोलने का यूज़ कर सकते हैं, बोलते वक्त स्पीड का यूज़ कर सकते हैं, लाउड का यूज़ कर सकते हैं, कहाँ आपको तेज़ बोलना है, कहाँ आपको धीरे बोलना है। जैसे अगर मुझे कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, जहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है हम वहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज़ कर देते हैं, और जहाँ नॉर्मल कम्युनिकेशन होता है हम वॉल्यूम को मेंटेन रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने प्रैक्टिकल वर्ड में इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन कभी कभी हम कोई मैसेज सर्कुलेट करते हैं, लेकिन हम प्रॉपरली बॉडी लैंग्वेज और गेस्चर का यूज़ नहीं कर पाते। यानी हम मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं और जहाँ हमें अपनी साउंड को इंक्रीज़ करना चाहिए वहाँ हम साउंड को इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं, जहाँ हमें अपने फेशियल एक्सप्रेशन का यूज़ करना चाहिए वहाँ नहीं कर पा रहे हैं। तो मैसेज जो है उतने इफेक्टिव वे में कम्युनिकेट नहीं हो पाता जिस वे में उसको कम्युनिकेट होना चाहिए। ठीक है। सो बेसिकली वी कैन से semantic barrier are those barriers which are concerned with the meaning of words and symbol, यानी जहाँ पे मैसेज को कन्वे करते हैं लेकिन उसमें वर्ड्स एंड सैम्बल्स का अच्छे से यूज़ नहीं हो पाता। आप जैसे वर्ड्स की जैसे इसके कुछ एग्जांपल है, बैडली एक्सप्रेस मैसेज मीन्स आपने गलत वर्ड यूज़ कर लिए, नेसेसरी वर्ड्स को भूल गए और वोकेबुलरी का प्रॉपर यूज़ नहीं किया गया। सैम्बल विद डिफरेंट मीनिंग, आपने ऐसे सैम्बल्स को यूज़ किया जिसकी कई डिफरेंट मीनिंग निकल सकते हैं। सैम्बल्स का मतलब होता है आपने कोई ऐसी सैम्बल्स का यूज़ किया जिसका डिफरेंट मीनिंग है। ओके। फॉल्टी ट्रांसलेशन, जब आपने इंफॉर्मेशन प्रॉपरली सर्कुलेट किया बट रिसीवर के पास प्रॉपर उसके बारे में नॉलेज नहीं है कि आप वो उस लैंग्वेज को या उस सैम्बल को कैसे ट्रांसलेट करें। अनक्लैरिफाइड एजम्पशन, जब भी आपको इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करें, कोई आइडिया सर्कुलेट करें तो उसके साथ जो भी एजम्पशन है उसको भी सर्कुलेट करना बहुत ज़रूरी होता है। टेक्निकल जॉर्गन, जो ड्यू टू द टेक्निकल नॉलेज के कारण होता है कि जो प्रॉपरली स्पेशलिस्ट, उस सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट ही उस प्रॉपर वर्ड्स को अंडरस्टैंड कर सकता है। सो ये भी एक रीज़न है। बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर डिकोडिंग, जैसे मैंने बताया कि कभी कभी हम बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, गेस्चर का यूज़ करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं, लेकिन वो हमारे मैसेज के साथ कोऑर्डिनेट नहीं होता। तो जो लिसनर होते हैं, जो रिसीवर ऑफ द मैसेज होते हैं, फॉलोअर ऑफ द मैसेज होते हैं, वो उस मैसेज को उस वे में कम्युनिकेट नहीं कर पाते या उस वे में परसीव नहीं कर पाते जिस वे में सेंडर ने उस मैसेज को भेजा होता है। ओके, नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, दैट इज साइकोलॉजिकल बैरियर। देखिए साइकोलॉजिकल बैरियर, जिससे पहले मैंने बात किया सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर विच आर टोटली बेस्ड ऑन द मैसेज, कि मैसेज में ये कमी है, मैसेज में कमी है और उसके डिकोडिंग में कमी है और इनकोडिंग में कमी है। 3 जगह कमी होती है सिमेंटिक में। सिमेंटिक बैरियर में मैसेज में कुछ कमी होती है, मैसेज के डिकोडिंग में कमी होती है और इनकोडिंग में कमी होती है। अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर, द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ बोथ सेंडर एंड रिसीवर अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो बैरियर होता है वो बेसिकली इस बात पर डिपेंड करता है कि जो सेंडर है और रिसीवर दोनों का स्टेट ऑफ माइंड कैसा है। जैसे अगर हम सिंपल सी बात करें, हम आपको कोई पढ़ा रहे हैं इस समय, लेकिन आपके माइंड में चल रहा है कि लॉकडाउन खुलेगा तो हम ये मूवी देखेंगे, यहाँ घूमने जाएंगे, पहले ये खाएंगे, तो जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ कंटेंट क्या आपके दिमाग में पहुँचेगा? नहीं। यानी जब कम्युनिकेशन प्रोसेस हो रहा हो, जब भी कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को इन्फॉर्मेशन या फैक्ट्स एक्सचेंज कर रहा हो, तो सामने वाले का माइंड का रिएक्शन क्या है, माइंड का स्टेट क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। या मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ, इस समय आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, बट बनाते वक्त मेरे माइंड में डिफरेंट थिंग्स चल रही हैं कि पढ़ाने के बाद मुझे ये करना है, मुझे वो करना है,
मुझे ऐसे करना है, यानी उसके दिमाग में 10 तरह के ख्याल चल रहे हैं, तो क्या वो इस समय का जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो इफ़ेक्टिव कर सकता है? नहीं कर सकता। यानी जब हम कम्युनिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं तो आपको अपने माइंड में एकदम क्लियर रखना है कि बोथ द पार्टीज, आइदर ही इज़ अ सेंडर हो चाहे वो रिसीवर हो, दोनों का स्टेट ऑफ माइंड एकदम क्लियर होना चाहिए और वो अपने कम्युनिकेशन प्रोसेस पे ही फोकस होना चाहिए। अगर इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं, इस तरह के स्टेट ऑफ माइंड स्टेबल नहीं होता है, तो साइकोलॉजिकल बैरियर्स का हमें सामना करना पड़ता है। जैसे इसके कुछ एग्जांपल देख लीजिए। Some of the psychological barrier are given below. The first one is premature evaluation. Communication is likely to fail if the receiver evaluates the meaning of message before the sender completes the message. Such premature evaluation may occur due to the preconceived notions and prejudices against the communicator. देखिए प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन, इट्स अ वेरी इजी एग्जांपल। कभी कोई टीचर आपको कुछ पढ़ाता है या कोई भी आपको लेक्चर देता है कि ऐसे करो, लेकिन आपने पहले से ही उसके मैसेज का एनालिसिस कर लिया, यानी उसने अपना मैसेज कंप्लीट नहीं किया, आपने अपने माइंड में रख लिया कि ये मेरे बारे में गलत ही बोलेगा या मुझे गलत ही सलाह देगा, तो आप उसकी बात को सुनोगे नहीं। यानी आपने पहले से उसका इवैल्यूएशन कर लिया है कम्युनिकेटर का, जो आपको मैसेज भेज रहा है। यानी ये मैसेज भेजेगा, जैसे पर्टिकुलर आपकी लाइफ में आपने कई स्टैंडर्ड के हेल्प से आपने ये स्टडी कर लिया होगा कि आपके लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो जब बुरा व्यक्ति आपके सामने कोई इन्फॉर्मेशन रखता है तो आप उस पर विश्वास नहीं करते, कहते अरे छोड़ो यार ये तो बकवास करता रहता है। तो प्री मैच्योर एवोल्यूशन यही है कि सेंडर के मैसेज भेजने से पहले, मैसेज को कंप्लीट करने से पहले ही आपने उसके बारे में एक पहले से इवैल्यूएशन कर लिया। सो यहाँ पर कम्युनिकेशन प्रोसेस कभी सक्सेसफुल होगा ही नहीं, ना भी इफेक्टिव होगा, क्योंकि आपने पहले से ही इवैल्यूएशन कर लिया है। ओके, सेकेंड वाज लैक ऑफ अटेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। जैसे मैंने भी बोला ना कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लेकिन आपका माइंड कहीं और है, तो आप अटेंशन, आपका जो माइंड है वो स्टेबल तो है नहीं, आपका ध्यान कहीं और है। तो व्हेन द रिसीवर्स माइंड इज प्री ऑक्यूपाइड ही फेल्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग सेड। वर्कर एक्सप्लेन सम प्रॉब्लम टू हिज सुपरवाइजर एंड सुपरवाइजर प्री ऑक्यूपाइड विद अ टेलीफोन कॉल एंड डज नॉट ग्रैप्स द मैसेज। वर्कर अपनी प्रॉब्लम बता रहा है और सुपरवाइज़र फ़ोन पे बात कर रहा है या फिर सुन रहा है, अच्छा ठीक है हाँ देखूंगा। सच काइंड, यानी आप उसके मैसेज को कान तक तो आ रहा है लेकिन कान के अंदर नहीं रख रहे, यानी आपका ध्यान कहीं और है। आप फिजिकली यहाँ प्रेजेंट हो बट मेंटली आप यहाँ प्रेजेंट नहीं। द थर्ड वन इज़ लॉस बाई ट्रांसमिशन एंड पुअर अटेंशन। ये काफ़ी प्रॉब्लम पाई जाती है। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है साइकोलॉजिकल बैरियर का। जब भी हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं या आप ऑनलाइन क्लासेस पढ़ते हैं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की जो रिटेंशन प्रॉब्लम होती है, रिटेंशन पावर होती है, वो काफ़ी कमज़ोर होती है। रिटेंशन पावर का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन पावर। व्हेन कम्युनिकेशन प्रोसेस थ्रू वेरियस लेवल्स इट मे रिजल्ट इन लॉस बाय ट्रांसमिशन, समटाइम्स पुअर रिटेंशन ऑफ पीपल ड्यू टू द लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड इंटरेक्शन लीड्स टू द मिसकम्युनिकेशन। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लेकिन आपका माइंड स्टेबल इसलिए नहीं है क्योंकि आप रखना नहीं चाहते, वो आ जाएगा लैक ऑफ अटेंशन में। यानी आप रख सकते हो, आप कॉन्सेंट्रेशन आप डेवलप कर सकते हो, बट कभी कभी किसी की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं या कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो ज़्यादा देर तक किसी एक ही चीज़ को बार बार सुन नहीं सकते, तो उस केसेस में मैसेज कभी इफेक्टिव नहीं हो सकता क्योंकि आपका रिटेंशन पावर सही नहीं होता। तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इसका कई रीज़न होता है, या तो आप फिज़िकली या मेंटली रूप से उतने स्टेबल नहीं होते हैं, या फिर कभी कभी ये देखा जाता है कि उनके अंदर कोई साइकोलॉजिकल बीमारियां होती हैं, या फिर आप उस सब्जेक्ट को लेकर इंटरेस्ट नहीं होते। जैसे अगर आपका मन है समय सीरियल देखने का टीवी में और पापा ने न्यूज़ लगा दिया, तो आप न्यूज़ बैठ के 1-2 मिनट 3 मिनट बैठ के देख रहे हो, बट यू नो वेरी वेल कि आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो आपका जो रिटेंशन पावर है वो खराब ही होगा, आपका टेंशन तो होगा नहीं क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं। द फोर्थ वन इज डिसट्रस्ट। डिसट्रस्ट इज़ अ वेरी important part of the barrier of communication. In the psychological barrier, जब सेंडर द्वारा भेजे गए मैसेज पे रिसीवर का बिलीव नहीं होता, यानी रिसीवर कहता है कि ये जो मैं मैसेज भेजता है वो मैसेज सही नहीं होता है, तो आप उसके मैसेज को रीड करके डिलीट करके रख देते हो। जैसे आप व्हाट्सएप पे करते हो कि कोई आपको मैसेज भेज रहा है, वो मैसेज आपको लगता है फेक है, यानी आपके उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, तो आप उसको समझने की कोशिश भी नहीं करते। यानी व्हेन द सेंडर एंड द रिसीवर डू नॉट बिलीव ईच अदर,
यानी सेंडर रिसीवर पे बिलीव नहीं करता और रिसीवर सेंडर पे। कम्युनिकेशन प्रोसेस हो सकता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में करना पड़े। तो इस तरह के सिचुएशन में साइकोलॉजिकल बैरियर्स का फॉलोअप करना पड़ता है। यानी कि अगर हम बेसिकली बात करें तो साइकोलॉजिकल बैरियर्स ऑफ द कम्युनिकेशन इंडिकेट्स द relationship between the sender and receiver as well as the state of mind of the sender and receiver। यानी सेंडर रिसीवर का स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, दोनों का एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस कैसा है, ट्रस्ट कैसा है, इस बात को एक्सप्रेस कर सकता है। सो दे आर बेसिकली फ्यू बैरियर्स ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। जैसे प्री मैच्योर इवोल्यूशन, पहले से ही हमने परसेप्शन बना लिया है। लैक ऑफ अटेंशन, हमारा उस सब्जेक्ट पर्टिकुलर कम्युनिकेशन प्रोसेस पे कोई अटेंशन नहीं है। लॉस ऑफ ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है, या फिर हाँ कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के कारण हम उस मैसेज को रिसीव नहीं करना चाहते हैं। डिस्ट्रस्ट मतलब सेंडर का और रिसीवर का दोनों का एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है, दोनों एक दूसरे पे उतना ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं। सो सच काइंड ऑफ बैरियर कैटेगराइज अंडर द साइकोलॉजिकल बैरियर। तो अभी तक हम लोगों ने बोला सिमेंटिक बैरियर और साइकोलॉजिकल बैरियर। सिमेंटिक बैरियर बेसिकली रिलेट किस पे करता है, बेसिकली इट वॉज रिलेटेड टू द मैसेज इनकोडिंग एंड डिकोडिंग प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशन। बट रही बात साइकोलॉजिकल बैरियर्स फोकस ऑन द माइंड स्टेट ऑफ सेंडर एंड रिसीवर एंड द म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। नाउ वी विल मूव टू द थर्ड बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। आई फील डैट कि आज के इस वीडियो के लिए हमने प्रॉपर कंटेंट को डिस्कस कर लिया है। सो हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स एज वेल एज द पर्सनल बैरियर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो पहले हम लोग पर्सनल सिमेंटिक बैरियर एज वेल एज साइकोलॉजिकल बैरियर्स के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको वन बाई वन स्टडी करते हैं। सो यू नो वेरी वेल, सिमेंटिक बैरियर में बैडली एक्सप्रेस मैसेज, जैसे बैडली एक्सप्रेस मैसेज का मैं एग्जांपल आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ कि अगर कोई मैसेज मैंने आपको कम्युनिकेट किया और उस मैसेज में कुछ वर्ड्स जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपने उस मैसेज के इंपॉर्टेंट वर्ड्स को सर्कुलेट नहीं किया और अननेसेसरी वर्ड्स को आपको सर्कुलेट कर रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन या वो कम्युनिकेशन प्रोसेस कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। द सेकेंड वन इज़ अ सिम्बल्स विथ डिफरेंट मीनिंग्स की अगर एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे आपने सुना होगा प्राइस एंड प्राइज, principles and principle, right RIGST and right WRIT। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो प्रोनाउंसिएशन में सेम होते हैं बट मीनिंग में डिफरेंट होते हैं। तो कभी कभी हम ओरल कम्युनिकेशन करते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं बट मीनिंग्स डिफरेंट होती हैं। फॉल्टी ट्रांसलेशन, इट इज़ अ वेरी इजी कि यहाँ पे कैपेसिटी नहीं है। जैसे मैंने किसी इंग्लिश सेंटेंस लिखा लेकिन रिसीवर के डिकोडिंग के पास इतना पावर नहीं है कि वो इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सके या उसके पास नॉलेज नहीं है उसके बारे में, तो यहाँ उसे ये प्रॉब्लम फॉलो करनी पड़ेगी। द फोर्थ वन, अनक्लैरिफाइड एग्जाम्पशन। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है टेक केयर ऑफ गुड्स। अब मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया, आपका एज अ सुपीरियर मैंने कहा टेक केयर ऑफ गुड्स, लेकिन आपने क्या किया, आपने सोचा कि गुड्स को प्रॉपर सिक्योर रखना, कि गुड्स ख़राब ना हो, किसी भी पानी से या कोई भी रीज़न से वो गुड्स ख़राब नहीं हो। यानी आपने उसकी किस पर्पज़ पे ध्यान दिया, सिक्योरिटी पे। यानी मैंने जब वो मैसेज भेजा टेक केयर ऑफ गुड्स, तो मैंने इस फीलिंग के साथ भेजा कि जब भी गुड्स बनाओ तो प्रॉपर क्वालिटी पे फोकस करो, क्वांटिटी पे फोकस नहीं करो। यानी मैंने जब मैसेज भेजा टेक केयर ऑफ गुड्स, तो आपके मन में आया गुड्स की सिक्योरिटी की बात, मेरे मन में आ रही है गुड्स की क्वालिटी की बात। तो कभी कभी एजम्पशन अलग अलग होते हैं, वर्ड सेम है, आपने वो गलत मैसेज को कन्वे परसीव कर लिया, मैंने उसको मैंने उसको अलग वे में क्या किया था, कम्युनिकेट किया था। टेक्निकल जॉर्गन, जैसे मैंने आपने एग्जांपल में दिया आपको EBIT, ओके EBIT, GDP MC, GDP FC, तो GDP एट मार्केट प्राइस, GDP एट फैक्टर कॉस्ट। साइकोलॉजिकल बैरियर्स के भी हम एग्जांपल आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। प्री मैच्योर एजम्पशन, कि मैंने आपके सामने कोई इन्फॉर्मेशन रख रहा हूँ बट आपने पहले ही से सोच लिया कि जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी ये मेरे कैरियर के लिए सही नहीं है, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं हुआ। लैक ऑफ अटेंशन, कि सपोज़
suppose a worker is giving suggestion regarding method of production and manager is preoccupied with an important file, यानी वर्कर क्या कर रहा है, सजेशन दे रहा है अपने सुपरवाइज़र को भाई प्रोडक्शन के मेथड को थोड़ा चेंज किया जाए, लेकिन जो सुपरवाइज़र है, जो हेड है, वो अपने किसी और काम में बिजी है। लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, तो ओरल इन्फॉर्मेशन में समटाइम्स आप देखते हैं कि हम कोई भी इन्फॉर्मेशन लंबे समय तक अपने दिमाग में नहीं रख पाते, जैसे समटाइम्स मैनेजर मे नॉट बी एबल टू रिटेन द ऑल इन्फॉर्मेशन फॉर अ लॉन्गर टाइम। एंड द लास्ट वन इज़ डिस्ट्रस्ट। तो डिस्ट्रस्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द साइकोलॉजिकल बैरियर, कि ऑर्गेनाइजेशन का जो सेंडर है और रिसीवर, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस का सेंडर और रिसीवर है, दोनों का एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं रहता। सो आई होप कि आज हम लोगों ने फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बीच में डिफ्रेंशिएट इस्टेब्लिश किया, एज वेल एज हम लोगों ने आज कम्युनिकेशन प्रोसेस के बैरियर्स को भी स्टडी करना स्टार्ट किया है। दे आर बेसिकली 4 बैरियर्स ड्यूरिंग अ कम्युनिकेशन प्रोसेस। द फर्स्ट वन इज़ semantic barrier, second one is a psychological barrier, third was an organizational barrier and fourth one is a personal barrier। तो आज हम लोगों ने 2 बैरियर डिस्कस कर लिए हैं, semantic barrier and psychological barrier। Okay, if you have any kind of doubt or suggestion regarding this topic, so please ask me in the WhatsApp group and online classes। Okay, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।